Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning. Today we are going to learn the current affairs of Indian economy that happened over the last week. Now in this current affair video lecture, our focus will be to deal with the areas that became active during the last 1 week of current affairs. So these included agriculture, then industry, exports, poverty related issues. So these were the core areas that became active, and we will be studying some mains questions with respect to these areas as well. Now, the mains questions that I would like to bring your attention to include: discuss the ways in which technology can help achieve the goal of doubling farmer income set by the government. What are the challenges involved in this context? So there are two-part questions. So this will be 250 words, and in 15 marks you have to attempt it. The second thing, the COVID-19 situation will further aggravate the poverty situation in India. Discussed in context of multidimensional poverty index that was just released last week. Then, given the rising amount of NPAs in India's banking sector, what are the upcoming challenges for the public sector banks? Give suggestions for their improvement in future. So these are the three basic questions that have originated from the mains point of view in the last week's current affairs with respect to Indian economy. So while we're discussing those current affairs, at that time, we'll be taking up these questions as well. Now, let's take on the board to the 7-dimensional model of current affairs within which the whole last week's current affairs fit in, as well as let me show you what all happened in news in the real time. So these are the news that you must have looked at. पिछले पूरे हफ्ते के अखबार के अंदर ये सारी खबरें आई. तो जैसे एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड असम में कुछ फ्लड रेसिस्टेंट सीड्स की बात की गई. सो ये हमने उसकी 7-डायमेंशनल वर्कआउट करना है, अभी आपको बताएंगे उसके बारे में. देन डाउन टू अर्थ के अंदर फर्स्ट रियल टाइम डिजिटल प्लेटफॉर्म टू मॉनिटर फील्ड लेवल डेटा टू bolster the food security, that came in news. Then next was in the explained section of Indian Express, why MPs push for inclusion into geographical indicator list or GI list on basmati rice can hurt India globally. So this was the explained part. So इसमें से आपके UPSC प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये बहुत अच्छा था. और दो न्यूज़ आइटम्स ऐसी हैं जो हमें 7-डायमेंशनल मॉडल को और भी समझने में और ये कैसे आपके यूपीएससी के करंट अफेयर को कॉम्प्रिहेंड कर सकता है, इसमें हेल्प करेगा. तो दो न्यूज़ थी पिछले हफ्ते. एक था इंडिया लिफ्टेड 270 मिलियन पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी, और दूसरी डाउन टू अर्थ के अंदर था इंडिया लिफ्टेड 271 मिलियन पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी इन 10 ईयर्स. सो बेसिकली एमपीआई के साथ रिलेटेड ये दोनों न्यूज़ आइटम्स थी. हमने जैसे कि आपसे डिस्कस किया था कि जो 7-डायमेंशनल मॉडल है, जब आप वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, इश्यूज एंड सजेशंस, इस एंगल से जब आप चीज़ें इकट्ठी करनी शुरू करते हो अलग अलग न्यूज़ आइटम से, तो वो बहुत ज़्यादा रश नहीं मारती. अब जैसे पहली न्यूज़ आइटम जो HT वाली थी, उसमें से ये वाला व्हाट एस्पेक्ट फैक्चुअल डिटेल्स मिली, और जो डाउन टू अर्थ में था उसमें से ये वाली मिली. तो हमने दोनों को रखा एक ही टॉपिक के अंदर, पॉवर्टी में ट्रेंड्स, और विद इन दैट ट्रेंड्स द वंस गेज्ड बाय MPI. लेकिन ये सारे के सारे एक जगह ही इंफॉर्मेटिव, अगर कुछ ऐड ऑन कहीं से मिल रहा है तो वो हम वहाँ पे ही ऐड कर देंगे. बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जो बेस है वो तो MPI रहेगा, तो वो सारा डेटा भी रिपीट ही होना है, तो बार बार वो रिपीट नहीं करना पड़ता. कैसे MPI मेजर करता है वो डाउन टू अर्थ में भी दे रखा है और HT में भी दे रखा है. फिर से हमारी रेपिटेशन जो है वहाँ पे बच जाती है. इश्यूज़ में करीब करीब एक जैसे इश्यूज़ दोनों ने सजेस्ट किए हुए थे, तो वो एक सिंगल लिस्ट बन जाती है. लेकिन सजेशंस को लेके HT के आर्टिकल में कुछ खास सजेशंस नहीं थी, सिर्फ एक ही थी, तो वो ऊपर है. कोविड-19 कॉन्टेक्स्ट को लेके डाउन टू अर्थ में कुछ सजेशंस एक्स्ट्रा दी गई थी, तो वो हमने वहीं पे साथ ही में क्लब कर दी. इस तरह से हमारा एक सिंपल आंसर जो है यूपीएससी के लिए रेडी होना शुरू हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेंड्स इन पॉवर्टी. सो पॉवर्टी हमारा कोर टॉपिक है सिलेबस में, और उसके आगे उसके ट्रेंड्स जो अभी चल रहे हैं, व्हाट इज द सिचुएशन राइट नाउ, उसकी गेजिंग जो है, उसमें इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एंड देन फाइनली
द डेटा रिलेटेड टू इट। इस तरह से अगर आप तैयार करेंगे, कल को अगर 10 आर्टिकल और भी आ जाते हैं इसके साथ रिलेटेड, तो आप वही चीज़ पिक करेंगे कि भाई व्हाट में क्या कुछ ऐड हुआ, कुछ कंसेप्चुअल डेटा, कुछ एक पर्टिकुलर फैक्ट, कुछ पर्टिकुलर फैक्ट उसमें ऐड हुआ या नहीं, देन इश्यूज में कुछ एक्स्ट्रा इशू वो हाईलाइट कर रहा है या नहीं। तो बस यहीं पे आपका 1 पॉइंट या 2 पॉइंट आएंगे और डुप्लीकेशन नहीं होगी आपके काम में, ओवरलैपिंग नहीं आएगी। इसके लिए बेस्ट है कि आप इसी तरह से वर्ड डॉक्यूमेंट में अपनी चीज़ें बनाइए टेबलर फॉर्म में और उसको वहाँ पे डालते जाइए। जब प्रीलिम्स का पेपर आएगा तो व्हाट व्हेन वेयर पे फोकस करेंगे, जब मेंस का पेपर आएगा तो व्हाई हाउ इश्यूज सजेशंस जैसे कि हमने डिस्कस किया था वैसे फोकस करेंगे। ठीक, आगे देखते हैं और क्या क्या न्यूज़ आइटम्स आज हमने कवर करनी है। सो यूएस रिमेन्स इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर फॉर सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर इन 2019-20। तो पिछले साल भी था, इस साल भी है। तो इकोनॉमिक सर्वे, इससे पहले चाइना हुआ करता था, उससे पहले और कंट्रीज थी, तो ये चेंज होता रहता है। बट स्टिल हमारे लिए ये कहाँ पे आता है, एक्सटर्नल सेक्टर में फॉरेन ट्रेड के अंदर द डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। क्योंकि जब हम समझते हैं फॉरेन ट्रेड तो उसमें 3 चीजें होती हैं, डायरेक्शन, कॉम्पोजिशन एंड वैल्यू। यस, चलिए इसको भी समझेंगे, डोंट वरी। देन इन्फ्लेशन रिलेटेड एक बेसिक न्यूज आइटम था, रिटेल इन्फ्लेशन ग्रोथ हैज बीन 6.09%। अब हमने इसको क्यों पिक किया है, क्योंकि हमारी जो रेंज ऑफ इन्फ्लेशन है वो पहली बार अब ब्रीच हुई है सिंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, तो वी हैव टू टेक ओनली दैट मच डेटा इनटू आवर अकाउंट। देन profitability, asset quality of Indian and Asian banks will be worrisome. So this was the concern. So NPAs बढ़ रहे हैं, तो हमारा ये टॉपिक कहाँ आता है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड what is the situation with respect to that right now. So similarly we have to take up what, why issues, suggestions and so on. कल को इसमें अब आर्टिकल्स आते ही रहते हैं एनपीए को लेके, ये कौन सा नई चीज़ है, इसमें डेटा भी अपडेट होता रहेगा। तो जितना जितना कुछ भी एड अप होता रहेगा वो आप इन्हीं डायमेंशंस में ऐड करोगे। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो हमारे इस हफ्ते के इश्यूज हैं, इसका 7 डायमेंशनल एस्पेक्ट है क्या। एक एक करके उनको पहले बेसिक लेवल पे फ्रेमवर्क में सेट करते हैं, फिर जो जो वैल्यू एडिशंस पिछले हफ्ते में उन बेसिक सेटअप्स के अंदर हुई उन सबको भी साथ ही साथ हम कवर करेंगे। सो लाइक आई सेड, हमें इसको वर्ड डॉक्यूमेंट में फिट करना है, तो जस्ट फॉर योर सेक आई एम शोइंग यू द न्यूज़ आइटम एज वेल। आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप तो बस अपने एग्रीकल्चर, उसके अंदर सीड एंड न्यूट्रिएंट टेक्नोलॉजी इस तरह से आपको फिट कर लेना है। और ये न्यूज़ आइटम के बारे में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। अमिड डेल्यूज असम फार्मर स्टैंड्स आउट विद फ्लड रेजिस्टेंट पैडी। ठीक है, और इसी तरह से आपका जो इंडेक्स है वो साइड में बनता जाएगा जैसे हमने पहले बात की थी। चलिए, सो नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये पूरा इशू है क्या विद रिस्पेक्ट टू सीड एंड एस्पेक्ट्स लाइक रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी। नाउ यू सी in our 7-dimensional model, how can we fit it, how should we conceptualize this? So as far as seed is concerned, you know, first off, when we say agricultural technology happens to come in 3 basic kinds, you know. So if I say 3 basic kinds, these include your seeds and nutrients. Okay, second basic kind is mechanization. So for example, the tractors and everything. And third is e-technology. So these are the 3 basic kinds or 3 basic ways through which technology creates an interface with agriculture. Seed and nutrition is the basic part here because your agriculture starts with the seed. Yes? Now, when this whole thing started, you know, as far as India is concerned, we always were very much careful about what kind of seeds the farmer should be breeding, what kind of impact it will have on the productivity and so on. But the major change took place during the 1960s, that is the Green Revolution, if you remember. Now, that is the point when we first started experimenting with high-yielding variety of seeds at a larger level. Now, where it took place? So you remember the Green Revolution states? Punjab, Haryana, and Western UP. So these were the 3 states that basically took it up in the beginning. Later on, it was spread to the eastern regions and other states as well. Now, why this particular thing is going to help? So seed in particular is going to help in productivity.
okay, as well as it is going to bring in certain amount of elements such as climate smart agriculture, certain amount of elements such as efficiency, because everything is related to productivity. Okay, now in terms of productivity, there is one particular concept you have already studied, that is called seed replacement rate. So as far as seed replacement rate is concerned, we know it should be somewhere around 1/3 as per the Indian agroclimatical conditions are concerned. Then within this, we have to study one more thing, that anytime a new seed is introduced, there are around 24% extra productivity happens. Now these things you have already covered. Now as far as the how part is concerned, the varieties of seeds that have been introduced in Assam, they include flood resistant and certain capabilities that they can survive underwater even for 2 weeks if they are submerged. So therein, what they have introduced essentially is certain amount of genetic modification within the seed itself, and we will be definitely coming to what seed exactly, but genetic modification has been done in the seed, due to which it is able to resist water for a period of time. Okay, and even after being submerged underwater for a sufficient period of around 2 weeks, it can definitely then re-emerge and increase its productivity as it was doing all along. So that is also a very good feature here. As far as the issues and analysis is concerned, so seed related issues today are mostly related to the Seed Bill 2019. सो इस टॉपिक के साथ रिलेटेड आपने पहले भी इसको कवर कर रखा है. तो सीड बिल 2019 बेसिकली इसकी रजिस्ट्रेशन सीड्स की कैसे होनी चाहिए, मार्केटिंग, लेबलिंग और किस जगह पे R&D आ सकती है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करता है और उसको लेके एक प्रॉपर प्रावधान बनाने की कोशिश करता है. इसके लिए भी प्रो एंड कॉन, अगेंस्ट एंड फॉर दोनों तरह के कमेंट्स आपको न्यूज़ में मिल जाएंगे. बट हमारे लिए एक इशू एंड एनालिसिस है जो कि ऑलरेडी चलता आ रहा है. ठीक है, इस पर्टिकुलर न्यूज़ आइटम के साथ ये एसोसिएटेड नहीं है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे. सजेशंस के लेवल पे सीड में किस तरह के आगे बदलाव किए जा सकते हैं वो आपको इस पर्टिकुलर आर्टिकल में नहीं है, लेकिन दे विल बी अगेन रिलेटेड टू सीड बिल इटसेल्फ. ठीक, अब चलते हैं हमारे न्यूज़ आर्टिकल के ऊपर और देखते हैं कि उसमें से क्या क्या चीज़ें करने वाली हैं. सो यू सी, एज फार एज द सीड बिल इज कंसर्न, वो तो हम अलग से एक न्यूज़ आइटम में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. यहाँ पे अब इस पर्टिकुलर न्यूज़ के साथ रिलेटेड जो 7 डायमेंशंस हैं उनको लेके स्टडी करना शुरू करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको प्रीलिम्स के लिए कैरी करनी है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेंस के लिए कैरी करनी है. सो प्रीलिम्स के एंगल से यू सी द व्हाट पार्ट. सो फार्मर्स इन द फ्लड प्रोन एरिया ऑफ असम हैव बीन हार्वेस्टिंग वाटर रेजिस्टेंट स्वर्ण सब 1. सो दैट इज द नेम ऑफ द सीड. स्वर्ण सब 1 आपको प्री के लिए याद रखना है. डेवलप्ड बाय ICAR एंड इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट. सो दीज आर द 2 इंस्टीट्यूट्स व्हिच हैव कोलैबोरेटेड. इससे पहले 2018 में रंजीत सब 1. सो दिस इज अनदर सीड व्हिच इज अगेन वाटर रेजिस्टेंट, फ्लड रेजिस्टेंट. सो ये भी डेवलप किया गया था. राइस को लेके कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको हमेशा पता होने चाहिए जो कि इसी आर्टिकल में दिए गए थे. तो अगर आपके पास वो ऑलरेडी स्टैटिक पोर्शन में आप कवर कर चुके हो तो फिर यहाँ डालने की जरूरत नहीं है. अगर आपको उस टाइम पे न्यूज़ आइटम पढ़ते हुए ये लगे कि वाकई में स्टैटिक पोर्शन में ये नहीं पढ़ा था या अब इसमें कुछ अपडेट आ रहा है, तब हमने ऐड करना है. सो एज फार एज द इंपॉर्टेंट सेक्शंस आर कंसर्न, आपको पता होना चाहिए आज की डेट में लीडिंग प्रोड्यूसर्स जो हैं राइस के कौन से हैं. सो वेस्ट बंगाल, यूपी एंड पंजाब, ये 3 स्टेट्स हैं जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं. और हाई यील्डिंग स्टेट्स कौन से हैं, सबसे ज्यादा यील्ड किस में बेटर है? सो दैट इज पंजाब, तमिलनाडु एंड हरियाणा, क्योंकि प्री में वो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं. देन वेस्ट बंगाल में राइस रिलेटेड 3 क्रॉप्स होते हैं, तो उनका भी नाम प्री के लिए आपको पता होना चाहिए. वैसे तो ये NCERT में भी गिवन है, बट स्टिल अगर आपने वहां से कवर नहीं किया तो दिस इज अ गुड रिमाइंडर फॉर यू. सो दैट इज ओस, अमन एंड बोरो. और एक और फैक्ट जो करंट रिलेटेड है, प्रेजेंट स्टैटिस्टिकल डेटा शो करता है, वो भी व्हाट में ही फिक्स हो जाएगा. सो दैट इज इंडिया कंट्रीब्यूट्स 21.6% ऑफ द राइस प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, रैंकिंग सेकंड ओनली आफ्टर चाइना. सो ये वाटर रिलेटेड फैक्ट्स हैं. अब
विद इन दिस पर्टिकुलर न्यूज आइटम देर आर सर्टन वाई रिलेटेड फैक्ट्स ऑल्सो। जैसे मैंने कहा कि 7 डायमेंशंस बेसिक लेवल पे आपको पता होनी चाहिए, लेकिन उस पर्टिकुलर न्यूज आइटम से मिलेंगी या नहीं ये जरूरी नहीं है। सो आपने उसमें पीएचडी करने की कोशिश नहीं करनी, कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। जस्ट फोकस ऑन व्हाट इज गिवन एंड जस्ट कीप एडिंग, बिकॉज आगे चलते हुए उसके साथ बहुत सारी न्यूज आइटम्स और जुड़ती रहेंगी और आपके ये 7 डायमेंशंस धीरे 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 बिल्ड होते रहेंगे। ठीक, okay. Now, as far as the why is concerned, so why farmers have adopted this particular seed is that it resisted submergence for up to 2 weeks and it provides greater yield and they can be regenerated. So these are the core aspects here. Okay. So allowing regeneration is a big deal for a seed, simply a seed. So it is able to do so much for the farmer. आज की डेट में खास तौर पे जब हमें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की जरूरत है तो इस तरह के सीड्स जो हैं वो हमारी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, सेकंड एस्पेक्ट जो है ई टेक्नोलॉजी इन एड ऑफ फार्मर्स। तो जैसे हमने 7 डायमेंशनल में देखा कि एज इट इज टेक्नोलॉजी जो है वो 3 काइंड से एग्रीकल्चर में आती है। पहला है सीड, दूसरा मैकेनाइजेशन और तीसरा ई टेक्नोलॉजी इन एड ऑफ फार्मर्स। तो ये जो न्यूज आइटम है जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, इट इज रिलेटेड टू दैट। सो डाउन टू अर्थ में इसके बारे में एक सफिशिएंट डेटा आया। अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स का मैगजीन सेक्शन पढ़ते हैं तो उसमें भी इसको लेके एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दिया गया था। तो इट इज समथिंग इन न्यूज एंड वी मस्ट नो व्हाट आर द इश्यूज एंड एनालिसिस एसोसिएटेड टू इट। सो लेट्स गो ऑन टू द 7 डायमेंशनल मॉडल विद रिस्पेक्ट टू द ई टेक्नोलॉजीज इन एग्रीकल्चर। व्हाट आर दे, what are the 7 dimensions in that, and then we can move on to considering what all is in this particular news item. So let's discuss this on the 7 dimensional model, the e-technology part as well. So agri-tech के अंदर जैसे हमने पहले बात की कि 3 तरह की technologies हैं। There are 3 types and within these 3 types there we have seeds, mechanization and e-tech. So e-tech is a part and parcel. अब जब हम बोलते हैं कि ई टेक्नोलॉजी तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एट वन एंड देर इज definite amount of software thing happening, but there is also some systems being embedded within this e technology. So with respect to the software thing, there may be an app, जैसे आपने इससे पहले M किसान, किसान रथ, किसान सभा, इस तरह की एप्स बहुत सारी सुन रखी हैं। एंड देन देर माइट बी सम एम्बेडेड सिस्टम्स एट द ग्राउंड लेवल, फॉर एग्जाम्पल सेंसर्स, फॉर एग्जाम्पल सैटेलाइट डेटा, for example navigation based data and various other things which would like to create a sufficient amount of data for policy research, sufficient amount of data for actionable intelligence for the farmer. So a whole system or gamut of things are collaborated together in what constitutes as e-technology. So for your understanding, a very simple way to look at it is software with embedded systems. Okay, so I'm just writing e-systems. You can write embedded systems for your notes. Now, as far as the when part is concerned, जब से e-technology हमने डेवलप किया है, एक इंटरनेट है, तो तब से इसको अलग अलग जगह पे यूज़ करना, इससे प्रोडक्टिविटी बेटर करना और एफिशिएंसी बढ़ाना, ये सारी चीज़ों के लिए हम यूटिलाइज करते चले आ रहे हैं. सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वी कैन कंसिडर दैट वी आर यूजिंग द डेवलप्ड सिस्टम्स ऑफ e-enablement for agriculture as well. कभी लैब के लेवल पे तो कभी लैंड के लेवल पे. बस फर्क सिर्फ इतना है कि आज अब 21st सेंचुरी के अंदर ये लैब टू लैंड जो एक MS स्वामीनाथन जी का ड्रीम भी था, ये भी फुलफिल हो रहा है और एक्चुअल में ई टेक्नोलॉजी अब ग्राउंड लेवल पे हमें नजर आती है इन द फॉर्म ऑफ वेरियस सेंसर्स, डेटा कलेक्शन, ऐप यूटिलिटी एंड सो ऑन. नाउ एज फार एज द वेयर पार्ट इज कंसर्न्ड, सो इट हैज नो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज. सो हम इस पर्टिकुलर डायमेंशन में इस आर्टिकल में नहीं जाते. देन द वाई पार्ट इज कंसर्न्ड, वेरी सिंपल, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, दीज आर द कोर कंसर्न. How part is concerned, so there is government, private and at the farmer level also there are certain amount of organized efforts going on which essentially enable e-technology to be adapted at the ground level and help the farmer. Then issues and analysis के साथ इंडिया स्पेसिफिक जो issues हैं वो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बहुत कम दिए गए हैं, लेकिन वो हम देखेंगे क्या क्या आर्टिकल के अंदर issues हैं. लेकिन इससे पहले के जो आर्टिकल्स आप पढ़ते आएंगे न्यूज़ में तो आपको इस तरह के कमेंट्स मिल जाएंगे कि देयर इज अ डिजिटल डिवाइड, या सो दैट इज वन पर्टिकुलर
issue that is always there in whenever we talk about your e-technologies or e-education or whatever. So there is a digital divide, and one more thing is that there are increasing costs involved whenever you adapt such kind of systems. So will there be a sufficient amount of return on these investments that farmers would be making in terms of deploying ground level sensors and the data and so on? So this is there. Then suggestions for this we will be looking at in this article itself कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस particular एस्पेक्ट को लेके जो ऐप डेवलप किया गया है उसमें करनी चाहिए, क्योंकि सजेशंस जो हैं वो हमेशा केस टू केस वेरी करेंगी, ठीक है। सो ऐप डेवलपमेंट को लेके जो एक कोर सजेशन चल रही है वो ये कि अलग अलग ऐप्स डेवलप करने की बजाय एक कॉम्प्रिहेंसिव ऐप आपकी आनी चाहिए जो फार्मर्स यूज कर पाएं। सो कॉम्प्रिहेंसिव ऐप, सिंगल ऐप शुड बी देयर। ये एक सजेशन हमारी गवर्नमेंट की तरफ से MEITY, यू नो द मिनिस्ट्री दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, सो इट वाज गिवन बाय दिस मिनिस्ट्री। हाँ, अपनी अपनी सजेशंस दो। अब ये मिनिस्ट्री का पूरा नाम क्या है, ठीक है। सो नाउ नाम तो एक ही है ना, MEITY, सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। सो यू हैव टू फोकस ऑन comprehensiveness. You don't create so many apps, you create one that the farmer in India can just download and utilize for various kind of actionable intelligence that he might need with respect to his agriculture. Now let's go on to the news item and study the 7 dimensions given within that. Okay, यहाँ पे जो मैंने बोर्ड पे कवर की वो पुरानी और नई एक बेसिक आइडिया आपको हो गया है। नाउ यू आर रेडी टू डाइजेस्ट द इंफॉर्मेशन कमिंग योर वे। ओके, सो नाउ इन दिस न्यूज आइटम आप देखिए ध्यान से कि ये भी राइस के साथ रिलेटेड ही है। एक ये भी फैक्ट है कि राइस कल्टीवेशन इंडिया में, हम स्पेशली पंजाब में, हम जितनी ये कहते हैं, ड्रेड करते हैं उसको कि वाटर टेबल इससे नीचे जा रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इकोनॉमिक रिटर्न्स के लेवल पे ये काफ़ी हमारे फार्मर्स के लिए फ़ायदेमंद है और डबलिंग फार्मर इनकम के एजेंडा को ये आगे भी लेके जाता है। और हमारे फार्मर्स का ये पसंदीदा साइकिल भी है राइस वीट, है ना। तो राइस जो है वो काफ़ी उगाते भी हैं हमारे फार्मर्स, तो इस वजह से इसको लेके अब ये इस तरह की इंटरवेंशन आ रही हैं, तो ये अच्छी ही हैं हमारे लिए। सो लेट्स लुक इनटू this. So as far as the what part is concerned, the factual data that this particular news item gives us, you see, so who all have collaborated in development of this app? This is the first thing. So it is an app, पहले तो app का नाम है Paddy Watch, okay? So you can create a watchful eye with respect to what should be happening with respect to your crop, that is rice. So University of Sydney in collaboration with Google Earth and Group of Earth Observations, so that is GEO, and several countries like India, China, Malaysia, Indonesia and Vietnam have come up with this particular application, because see, the country level collaboration is concerned with the data from the ground, and the organizational level, that is Google Earth or GEO or the university level data, so they will be collaborating it and creating it into an app and having an actionable intelligence working for you. Now within this news item, another factual thing that is useful for your prelims is Group on Earth Observations. So what is this? So this is a global research connecting government institutions, academic and research institutions, data providers and scientists. So आपको इस तरह से pre में statement based question इसको लेके आ सकता है, so be careful with that. Then ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है, इट कोऑर्डिनेट्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू बिल्ड व्हाट? सो इट इज बिल्डिंग GEOS, दैट इज ग्लोबल अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। सो एक तरह से जैसे आप मूवीज में नहीं देखते कि एक पर्टिकुलर रूम में सब चीज़ें मॉनिटर हो रही हैं कि कैसे कौन सा कॉमेट किधर से आ रहा है, कैसे क्लाइमेट ओरिएंटेशन चल रही है, एवरीथिंग। सो लाइक दैट काइंड ऑफ सिस्टम इज बीइंग बिल्ट हियर, ओके। Coming out of the fiction into the reality again. So it will provide near real-time environmental data, information and analysis. And why are we going for this app in particular? So in the why section, this will essentially promote the digital agriculture. Now digital agriculture आपके means के लिए बड़ा important एक question आज की डेट में बनते जा रहा है, especially with the amount of technology adaptation happening at the ground level today. So you see, this app would work on deep learning techniques to forecast crop yields and water consumption, क्योंकि आपकी सरकार का भी आज नारा है
पर ड्रॉप मोर क्रॉप। सो वाटर यूज एफिशिएंसी इज द कोर कंसर्न हेयर, और ये ऐप भी उसको आगे सुनिश्चित करेगी। देन इट वुड अलाउ फार्मर्स, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, एनजीओज एंड गवर्नमेंटल प्लानर्स टू मैनेज लैंड एंड अल्टीमेटली इंश्योर फूड सिक्योरिटी इन दी राइस बाउल्स। देन साथ ही ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 दैट इज जीरो हंगर, उसके ऊपर भी वर्कआउट करेगा। और कुछ सजेशंस हैं जो इस पर्टिकुलर ऐप के साथ रिलेटेड हैं, जो आगे जाके इसकी यूटिलाइजेशन और भी बढ़ाएंगी। दीज इंक्लूड ग्रीन हाउस गैस emissions, so you know rice fields they emit methane, so there can be sensors at the ground level that can help manage or study the greenhouse gas emissions that are happening and study their impact on global warming as well. It can also help in policy formation, given the data that it would generate will be a very rich data. Okay, so all this is going to help us a lot in understanding how to proceed further with our agriculture, especially with the e-technology aiding the farmer in the 21st century. Now, moving on to the next news item. So that is with respect to MP's push for including its rice variant into the GI tag system. So let's go on and understand its 7-dimensional framework and what all is given in this particular news item for you. So GI tag के साथ जुड़े हुए 7 dimensions क्या हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं. So as far as GI tag is concerned, अगर what के एंगल से देखें तो ये एक सिंपल मार्क ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड इंसिग्निया है कि एक पर्टिकुलर चीज़ जो है कहाँ पे लोकेटेड है, तो उसको एक ऑरिजिन ट्रेस करने के लिए, प्लेस ऑफ ऑरिजिन ट्रेस करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं. सो इट बेसिकली प्रोवाइड्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑथेंटिसिटी, या सो इट्स अ मार्क ऑफ ऑथेंटिसिटी. सो दैट ऑल्सो इज द कोर एस्पेक्ट ऑफ GI टैग. अब ये बेसिकली हमारे लिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि एक पर्टिकुलर रीजन के लोगों की एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रीमियम है ये, और वही इसको बहुत अच्छे से डेवलप करते हैं, और इस तरह से वहाँ से जो चीज़ आएगी वो बाकी सब जगह पे चाहे वो चीज़ हो रही है लेकिन उससे डिफरेंट होगी. ठीक, अब इसको लेके जो इंडिया में शुरुआत की गई वो कब की गई और वर्ल्ड लेवल पे कब की गई? तो वर्ल्ड लेवल पे इसका जो कंसर्न है वो ट्रिप्स एग्रीमेंट से है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन WTO. ठीक है, इंडिया लेवल पे इसका जो शुरुआत है वो 1999 में वी केम आउट विद अ पर्टिकुलर एक्ट. सो द नेम ऑफ दिस एक्ट is Geographical Indication of Goods and Services Registration and Protection Act 1999. तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है, और इसको लेके एक GI रजिस्ट्री भी चेन्नई के अंदर इस्टेब्लिश किया गया. सो देयर इज अ GI रजिस्ट्री जहाँ पे सारा डेटा एक जगह इंटीग्रेट किया जाता है इंडिया के स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव से. अगर इसको देखें क्यों इसको किया जाता है, सो बेसिकली देयर कैन बी इश्यूज लाइक premium, economic premium that you can attach to the GI tag. Then it helps in promotion, international exports with respect to the agri-export area as well. So essentially it is promotion. Okay, so that is where it is most applied for. So concern इसमें MP government का भी promotion को लेके ही है. ठीक है, then how it is to be taken up? So as per the act only it will be functional. So जो authorities उनको act के थ्रू चलेंगी तो इस तरह से वो लागू हो जाएगा. लेकिन इसको लेके हाई कोर्ट में प्ली भी किया जा सकता है, जैसे MP के अगेंस्ट बहुत सारे स्टेट्स ने मिलकर किया है. इश्यूज एंड एनालिसिस में इसका जो कंसर्न है जो पीछे से चलता आ रहा है वो 2 लेवल पे है. फर्स्ट इज ट्रेड प्रमोशन, सो इट इज रिलेटेड टू दैट. ठीक है, सो मे बी इट इज डोमेस्टिक ट्रेड और मे बी इंटरनेशनल ट्रेड, दोनों लेवल पे इसका कंसर्न है. सेकेंड इसका जो कंसर्न है दैट इज बायोपायरेसी. सो यहाँ पे भी इसका कंसर्न आता है क्योंकि जो हमारी ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना बहुत इनरिच्ड है, लेकिन हमारी इनको स्टडी करने की और क्लेम करने की जो क्षमता है वो कंपैरेटिवली कम है, या रुझान उसकी तरफ इतना ज़्यादा अभी अभी ही शुरू हुआ है, पहले ज़्यादा नहीं था. इस वजह से जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं कई बार इस तरह से उनको यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं दैट वी शुड गेट द रजिस्ट्रेशन फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और पेटेंट्स और समथिंग लाइक दिस. ओके, नाउ सजेशंस इसको लेके GI टैग इन पर्टिकुलर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एज अ होलसम केस यही है कि इसमें फार्मर्स इंटरेस्ट और डेवलपिंग कंट्री के इंटरेस्ट जो हैं वो दोनों प्रोटेक्ट होने चाहिए. पुअर के इंटरेस्ट हमेशा प्रोटेक्ट होने चाहिए.
ये नहीं है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किसी ने एक बार साइन अप कर लिया तो फिर उसी ने उसको कैप्चर भी कर लिया और वही उसको यूज कर रहा है. दैट शुड नॉट बी द केस. सो एसेंशियली इट शुड बी इक्विटी ओरिएंटेड. सो वो यहाँ पे लाना जरूरी है, चाहे वो जीआई टैग है, लेकिन इसमें एक होलसम इंटरेस्ट सोशल लेवल पे देखना ज़्यादा ज़रूरी है. सो नाउ लेट्स गो इनटू द न्यूज़ आइटम एंड व्हाट ऑल डेटा इज प्रेजेंटेड टू अस देयर. अब ये जो जीआई टैग है इसको लेके व्हाट बेस्ड इन्फॉर्मेशन या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको जो प्री के लिए पढ़नी है वो क्या है देखिए. सो अकॉर्डिंग टू द अपेडा who can be assigned this GI tag, वो इस न्यूज आइटम के अंदर गिवन था. So that is agricultural, natural or a manufactured product originating from a specific geographical area due to which it possesses unique characteristics and qualities. ऐसे किसी जगह के लिए, ऐसे किसी प्रोडक्ट के लिए ही हम GI टैग देते हैं. Then GI tag is a kind of a trademark in the international market and it will also help in creating an assurance with respect to where that product is coming from. Now, next, बासमती को लेके GI tag का अब मुद्दा क्या है? So India is the only producer of premium basmati rice and Indo-Gangetic Plain is the area with which it is associated. So there will be certain states in India and some 18 districts of Pakistani Punjab which are included in this particular area. Then origin and reputation के level पे देखें तो it is a long grain basmati rice which is also aromatic in nature, तो इस वजह से देखते हैं. Then MP का इसको claim किस वजह से? MP says कि जो rice वहाँ पे grow हुआ होता है उसका same properties आते हैं. It's a long grain rice and it is aromatic in nature. But WTO का ट्रिप्स एग्रीमेंट ये बोलता है दैट फिजिकल एट्रीब्यूट्स आर नॉट सफिशिएंट, ओके, एंड दे आर नॉट द ओनली क्राइटेरिया फॉर अर्निंग ए जीआई टैग. मोरओवर, एज पर द एक्ट दैट आई टोल्ड यू अबाउट, सो गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2003, अब 1999 में ये एक्ट आया, 2003 में इसको अमेंड किया गया. सो रेपुटेशन टू ए जोग्राफिकल एरिया इज सेंट्रल टू द रिकॉग्निशन ऑफ जीआई प्रोडक्ट. बेसिकली जैसे हम बोलते हैं मलियाबादी आम, तो मलियाबाद के साथ उनकी रेपुटेशन एसोसिएटेड है. तिरुपति लड्डू, तो तिरुपति मंदिर जो है उनके साथ उनकी रेपुटेशन एसोसिएटेड है. तो लोग उसको उस रेपुटेशन से पहचाने तभी जीआई टैग देने का कुछ मतलब बनता है. कोल्हापुरी चप्पल, यू नो, मेनी आर लाइक दैट, ओके. सिलोन टी, यस. देन एमपी बेसिकली उसका क्लेम किस तरह से इसमें आ रहा था? सो इट इज फॉलिंग इन द मध्य भारत पत्थर और प्लेट्यू. सो विद इन दिस एमपी में इसकी जो कल्टिवेशन है बासमती राइस की, दैट ओनली स्टार्टेड इन द मिडल ऑफ द फर्स्ट डेकेड ऑफ द सेंचुरी. और वी इनफैक्ट नो कि राइस के जो हमारे को एविडेंसेस मिले हैं राइस कल्टीवेशन के, स्पेशली बासमती राइस, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के एरिया से भी मिलते आ रहे हैं. यू मस्ट हैव रेड इट इन योर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, या. सो दोज एरियाज फॉल इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन ओनली. तो एमपी का उस पर कुछ डायरेक्ट हिस्टोरिकल क्लेम भी नहीं बनता है इस वजह से, तो इस वजह से एसोसिएशन नहीं है. नाउ एज फार एज द सजेशंस आर कंसर्न, तो ये आर्टिकल हमें दो लेवल पे सजेशंस दे रहा है. पहला कि करीब 20 लाख फार्मर्स हैं जो आज इसका इकोनॉमिक प्रीमियम एंजॉय करते हैं बिकॉज ऑफ द basmati rice and its premium content and its aromatic qualities and because of all this international image, okay. और अपेडा ने ऑलरेडी करीब 250 करोड़ रुपया खर्च किया है इसका ये स्टेटस और जीआई टैग बचाने के लिए कि कहीं कोई और कंट्रीज इसको रजिस्टर ना कर जाएं, क्योंकि हमसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला चाइना है और भी बड़ी सारी कंट्रीज हैं जो फिर इस दौड़ में शामिल हो जाएंगी कि उन्होंने भी अपनी अपनी राइस का जीआई टैग करवाना है. लेकिन अभी बासमती राइस इंडो गैंगेटिक प्लेन के साथ एसोसिएटेड है, तो इसको जीआई टैग में ना लाना ही हमारे लिए अच्छा है. इसीलिए एमपी हैज been, you know, shown the door कि आपको ये GI tag particularly नहीं मिलेगा for basmati rice and it's in overall interest of the farmer, जैसे हमने कहा equity oriented है, so that is the core aspect of this particular article. Next article that we have to work on is related to multi-dimensional poverty index. तो ये दो आर्टिकल्स थे, एक हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर
और एक डाउन टू अर्थ के अंदर, दोनों की इंफॉर्मेशन हमने एक ही जगह क्लब कर ली है। ये आपको बहुत बार देखने को मिलता है। हिंदू न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पे एक ही चीज़ को लेके हफ्ता भर न्यूज़ चलती रहेगी। तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी के साथ चलोगे तो जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एड अप होनी है वो बहुत ज़्यादा पाइल ऑन आपके ऊपर नहीं करेगा। तो दिस आर्टिकल विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग दैट टेक्नोलॉजी एज वेल। So now let's take you to the 7-dimensional aspects of multidimensional poverty, the poverty trends in India, how these all are being discerned, ठीक, and then ये आर्टिकल हमें in particular क्या देता है। So poverty estimates को लेके कुछ basic 7 dimensions पहले समझते हैं, फिर आर्टिकल की भी 7 dimensions देख लेते हैं। So what के लेवल से देखें तो हमारे पास दो तरह से पॉवर्टी का हम एस्टिमेट करते हैं, एक है एब्सोल्यूट, एक है रिलेटिव। एब्सोल्यूट पॉवर्टी की एस्टिमेशन हम डेटा के बेसिस पे करते हैं। रिलेटिव की हमारे पास लॉरेंस कर्व, गिनी कोएफिशिएंट, आपको ऑलरेडी वो कॉन्सेप्ट्स याद हैं। वेन को लेके इसमें प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस दोनों तरह के इंडेवर्स हमारे सामने हैं। प्री इंडिपेंडेंस में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी का नाम आता है, जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, है ना। देन एक नेशनल प्लानिंग कमेटी के भी एस्टिमेट्स हैं 1938 के अंदर। पोस्ट इंडिपेंडेंस में सबसे पहले जो एस्टिमेट किया गया दैट वाज बाय प्लानिंग कमीशंस एक्सपर्ट ग्रुप इन 1962 एंड लेटर ऑन देयर वाज अ कमिटी, दांडेकर एंड रथ कमिटी, जिन्होंने 1971 में थोड़ा बेटर एस्टिमेट दिया। लेकिन सबसे सिस्टमैटिक जिसको माना जाता है और पहला सिस्टमैटिक एस्टिमेट जो है वो वाई के आला कमेटी ने 1979 में हमें दिया और काफ़ी हद तक वो हमारा एक बेंचमार्क भी बना। और 1993 में जाके देन कम्स डीटी लकड़ा वाला कमेटी। दिस इज जस्ट getting you ready for what is coming in current affairs. Okay, then 2009 में तेंदुलकर कमेटी थी, जिसने जो मेथडोलॉजी हमें दी वो आज भी हमारी ऑफिशियल मेथडोलॉजी है पॉवर्टी एस्टिमेट्स को लेके, आप सब जानते हैं। 2013 में सी रंगराजन कमेटी दोबारा से बनाया गया, बट उसके रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट नहीं हुए। व्हेन एंड वेयर वाई के इसमें कॉन्सेप्चुलाइजेशन इस तरह से है। वेयर और वाई हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा यहाँ मायने नहीं रखता है। पॉवर्टी एस्टिमेशन करनी ज़रूरी है भाई, पता तो होना चाहिए ना गवर्नमेंट को पॉलिसी लेवल पे इनपुट्स क्या देने हैं, किस तरह की गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आनी है, उन सब की जो चैनलाइजेशन है वो इसी वजह से हो पाएगी अगर आपके पास पॉवर्टी एस्टिमेट्स आएंगे तो। देन how these poverty estimates are done. So generally they carry out a reference period based data collection, यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, ये दोनों आपको मालूम है। ऐसे ही एक सी रंगराजन कमेटी ने मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड दिया था, जस्ट टू गिव यू अ ओवरऑल फील ऑफ द सब्जेक्ट। पॉवर्टी एस्टिमेट्स को लेके दो मेजर इश्यूज इंडिया में हमेशा रहते हैं। एक तो मेथडोलॉजी डिबेट रहता है कि किस तरह से मेजर की जाए, तो इसको लेके आज भी नीति आयोग ने 4 बेसिक लेवल पे सजेशंस दी हैं। तो 4 सजेशंस ये हैं कि या तो आप तेंदुलकर कमेटी की मेथडोलॉजी यूज़ कीजिए, या सी रंगराजन या उससे कोई हायर पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन की मेथडोलॉजी यूज़ कीजिए, या फिर आप बॉटम 30% ऑफ पॉपुलेशन को ट्रैक कर लीजिए। दिस वाज द थर्ड ऑप्शन। एंड द फोर्थ ऑप्शन गिवन वाज दैट यू कैन check or monitor the progress of the population on some specific indicators like education, assets, housing and things like that. So इसमें आपको इस तरह की सजेशंस जो हैं वो नीति आयोग टास्क फोर्स ने दी। दूसरा बड़ा जो मुद्दा रहता है पॉवर्टी को लेके दैट इज विद रिस्पेक्ट टू डेटा। ग्राउंड लेवल डेटा कलेक्शन जो है उसको लेके हम हमेशा ही असंतुष्ट रहते हैं पॉवर्टी एस्टिमेट्स को लेके। देन स्पेशली इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन ये डेटा के एनालिसिस में और भी ट्रबल आएगा और डेटा गैदर करना भी अपने आप में मुश्किल होगा। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को लेके जो ये न्यूज़ आइटम आई है, इसका बेसिक कंसर्न ये है कि वर्ल्ड लेवल पे एक पॉवर्टी का कंपैरेटिव डेटा हमारे पास आ जाए तो इंडिया की वहाँ पे पोजीशनिंग कैसे है, और मेथडोलॉजिकल लेवल पे भी ये सिंपल कैलोरी स्पेसिफिक या एक कंजम्पशन ओरिएंटेड मेथडोलॉजी नहीं है। ये इसकी जो मेथडोलॉजी है थोड़ी ब्रॉड है, इसीलिए हम इसको मल्टी डायमेंशनल भी बोल रहे हैं, है ना। इसकी जो डेवलपमेंट के रिलेटेड फैक्ट्स दिए गए हैं दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द व्हाट पार्ट, so that has been given in the news item. So it has been built by UNDP and OPHI, that is Oxford Poverty and Human Development Initiative in 2010. ये पर्टिकुलर चीज 2015 में यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ ली गई थी दैट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड दी MPI और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक,
उस टाइम पे उन्होंने सिर्फ OPHI का नाम लिखा था, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। दूसरा जो इसमें फैक्चुअल डेटा इसी न्यूज़ आइटम्स से निकलता है, लाइक आई सेड, पहला HT वाली जो न्यूज़ आइटम हमने देखी उसमें सिर्फ इतना ही था, फिर डाउन टू अर्थ ने कुछ एक्स्ट्रा हमारे लिए ऐड किया, तो यहीं पे आपको अपने नोट्स में भी ऐड कर लेना है इन द व्हाट पार्ट। सो इंडियाज वॉलंटरी नेशनल रिव्यू ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सो दिस पर्टिकुलर VNR रिव्यू इज कैरिड आउट बाय नीति आयोग, ओके, एंड it will cover around 271 million people who were lifted out of the poverty in last 10 years. That is for the data 2005-6 to 2016-17. That is what has been stated in the VNR report conducted by Niti Aayog. Now, as far as MPI is concerned, उसमें हाउ पार्ट के अंदर क्या चीजें फिट होती हैं कि डेटा कैसे गैदर किया जाता है ना। सो यहाँ पे 3 बेसिक डायमेंशंस हैं और उसकी आगे सब डायमेंशंस हैं, तो टोटल डायमेंशंस हमारे पास इस तरह से बन जाती हैं। सो एजुकेशन इज देयर, health and standard of living. Within education, they are focused on years of schooling and enrollment. Then within health, child mortality and nutrition. Standard of living में ज़्यादा हमारे पास weightages और data है. So there is electricity, flooring, drinking water, sanitation, cooking food and assets. तो इस तरह से है. Global scenario जो हमें issues के अंदर set करना है, तो वो क्या है? 1.3 बिलियन पीपल आर स्टिल लिविंग इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। सो SDG के ऊपर अगर आपको मेंस में आंसर लिखने को मिले या फिर पॉवर्टी का आज की सिचुएशन की बात हो, तो वर्ल्ड लेवल पे भी आप उसमें बात कर पाओ, MPI का डेटा आपको वहां हेल्प करेगा। देन half of the multi-dimensionally poor people are children under the age of 18. So you see, आज भी जो TFR है ना, वो सब सहारन कंट्रीज, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज वहाँ पे ज़्यादा है और इसी वजह से ज़्यादातर बच्चे इस गरीबी रेखा के नीचे चल रहे हैं। सो अबाउट 84.3% ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल लिव इन सब सहारन अफ्रीका एंड साउथ एशिया। Okay, and India has lifted around 270 million people out of poverty, that is there. Then, in terms of suggestions, so the index with its information, both level and composition of poverty, provides the data needed to pinpoint where and how poverty manifests itself, and for that matter, government policy also, where and how it should be operational. Then, as far as the COVID-19 context is concerned, ये वाला जो सजेशंस हैं ये डाउन टू अर्थ के अंदर ही दिया गया था, HT में नहीं था, तो आपने इस तरह से सजेशंस बॉक्स में कंपाइल कर लेना है। तो इसमें क्या बात कही गई कि हमें अब कोविड-19 के चलते बहुत सारे लोग हैं जो दोबारा से गरीबी की तरफ धकेले जाएंगे, तो इसलिए अपने डेटा को रिजेक्ट करना है, उसको रीअसेस करना है कि क्या वो डेटा वाकई में सही है। ठीक, सो एसेंशली you need to take action to redress the rise of undernutrition and children leaving school. You need to reassess your poverty data. So these were some of the suggestions given by Down to Earth. हमारे यहाँ पे मिड डे मील प्रोग्राम चलता है जिसके थ्रू बहुत सारे बच्चों का न्यूट्रिशन ऑलरेडी सेट था, लेकिन अब क्योंकि स्कूल बंद हैं तो मिड डे मील प्रोग्राम भी बंद है कोविड-19 के चलते, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू रीअसेस द पुअर। इवन जो हंगर रिलेटेड इंडिसेस हैं उन पे भी दोबारा से काम करना पड़ेगा, ना सिर्फ जीरो पॉवर्टी बट ऑल्सो जीरो हंगर। सो दिस इज द पर्टिकुलर लाइन ऑफ ओरिएंटेशन दैट दिस पर्टिकुलर डेटा इज प्रोवाइडिंग अस। नाउ one more suggestion that has come in is that there is a need to incorporate data quality refinement in the survey process for conducting the next consumer expenditure survey in 2021 and 2021-2022, because ये जो consumer expenditure surveys हैं इनको लेके हमेशा data related issues highlighted होते रहे हैं 2018-19 के अंदर भी। तो जब तक हम data sanctity, याद रखिए डेटा के साथ ना कुछ एक words जुड़े हैं, जैसे there is the overall historical data, for example we call it legacy data, तो एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में सालों का डेटा बना हुआ है, तो ये लेगेसी डेटा पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है। दूसरा है डेटा विड्थ, तो आप कितने लोगों को कवर कर रहे हो विद इन अ गिवन डेटाबेस। देन तीसरी टर्मिनोलॉजी है डेटा सैंक्टिटी, कि क्या ये डेटा वाकई ठीक है जिसके बारे में बात की जा रही है, क्या ये रियल पिक्चर कितने हद तक प्रेजेंट करता है। ठीक, देन गैप्स इन द डेटा, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 4-5 जो डायमेंशंस डेटा इन स्पेसिफिक के साथ जुड़ी हैं, इसको आप अपने मेंस आंसर राइटिंग की क्वालिटी इन्हांसमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो। नोट कर लो फटाफट।
ठीक है, चलिए नाउ वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम दैट इज रिलेटेड टू एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ये वही इंडिया चाइना इकोनॉमिक इश्यूज की कंटिन्यूएशन में चलता हुआ एक टॉपिक है। तो उसमें एक स्पेसिफिक डायमेंशन जिसमें हमने लिखा था कि चाइना के ऊपर इंडिया डिपेंडेंट है इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट ऑफ दिस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स अप टू द एक्सटेंट ऑफ 68%। सो वो कैसे ठीक किया जाए उसको लेके रिकमेंडेशंस सजेशंस हमारे पास आई हैं बाय the Ministry of Science and Technology. So it has given a report that is status, issues, technology readiness and challenges. तो इस रिपोर्ट के साथ रिलेटेड 7 डायमेंशंस क्या हैं और ये ओवरऑल हमारी इंडस्ट्री स्पेशली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए क्या मायने रखता है, इस सारी चीज़ों को हम पहले 7D बोर्ड पे समझने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद वी विल बी गोइंग इनटू व्हाट ऑल इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर न्यूज आइटम एंड how it fulfills your data, what, when, where, how, 7 dimensions for your prelims and mains point of view. Now, in light of getting you ready for this particular current affair, let's just go over to the industrial policy, a bit of insight into that. So, why we create and what is the particular industrial policy? It essentially creates certain focused points as to how we are going to go about developing industries in India. आमतौर पे इसका जो focus होता है वो public versus private या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, ठीक इन बातों को लेके होता है। अब व्हेन, सो एज फार एज व्हेन इज कंसर्न 1948 से इंडिया में अलग अलग इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आती रही हैं। 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इन पर्टिकुलर हम इंडस्ट्रियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते थे, जहाँ पे शेड्यूल ए, बी और सी में हमारी इंडस्ट्री को बांटा गया था। 1991 तक जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई तो दैट सेट अ बेंचमार्क फॉर द एलपीजी सिनेरियो। उसके बाद एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आया था 2011 में, लेकिन 2019 में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम फिर से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नया आएगा। उसका एक बेसिक ड्राफ्ट भी पब्लिक किया गया, लेकिन एक होलसम पॉलिसी अभी भी नोटिफाई नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक स्लो डाउन दैट वाज हैपनिंग सिंस 2019 इटसेल्फ। देन वेयर पार्ट इसमें कुछ खास एसोसिएशन नहीं रखता, लेकिन वाई पार्ट डेफिनेटली है कि जब भी हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनानी है तो करंट सिचुएशन या डायनामिक एस्पेक्ट्स को वो जस्टिफाई करती हो, इस तरह से इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी चेंजेस आते रहने चाहिए, चाहे वो पब्लिक के लिए डायरेक्शन दे, पब्लिक सेक्टर के लिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के लिए। देन एज फार एज दी हाउ पार्ट इज कंसर्न, सो जैसे इस पर्टिकुलर काउंसिल ने TFAC has given certain suggestions with respect to how to deal with pharmaceutical industry. ऐसे ही ministries, departments, various committees, they keep up giving their inputs and इस particular article में हम TFAC के रिलेटेड जो इनपुट्स आए हैं विद रिस्पेक्ट टू द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, उसको लेके सजेशंस हमने स्टडी करने हैं। देन इश्यूज एंड एनालिसिस में इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेके 2 मेजर कंसर्न्स हमेशा रहे, स्मॉल वर्सेस लार्ज और दूसरा डोमेस्टिक वर्सेस फॉरेन। सो इन दोनों को बैलेंस तरीके से आगे चलाने के लिए हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी में एक पर्टिकुलर हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं। देन सजेशंस के लेवल पे आमतौर पे ये देखा जाता है कि हमें एक तरफा होके कभी कोई फ़ायदा खास नहीं होता, क्योंकि बिजनेसेस के अंदर अगर एक सेंस ऑफ बैलेंस नहीं है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का, या ये कह लीजिए एलपीजी और आत्मनिर्भरता का, तो फिर वो बिजनेसेस या इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपने आप में अधूरा माना जाएगा और आज की नीड्स को एड्रेस नहीं करेगा। तो आइए अब ज़रा न्यूज़ आइटम में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें फोकस में वैल्यू एडिशन मिला। ठीक है, सो एज फार एज दिस पर्टिकुलर सजेशन इज कंसर्न, बेसिक से अब वैल्यू एडिशन ओरिएंटेड की तरफ आ जाते हैं। सो इन द व्हाट पार्ट इट एडेड India's pharmaceutical industry related data. So let's study that. So India is the 3rd largest in terms of volume, in terms of प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। सो चाइना और इटली के बाद इंडिया का नंबर 3रे नंबर पे आता है। और अगर वैल्यू के एस्पेक्ट से देखें कि कितनी पैसों की एज इट इज हमारी आउटपुट है, सो वहाँ पे 14वें नंबर पे इंडिया आता है। ठीक है, इंडिया में आज करीब 3000 अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो अपनी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और इनके करीब 10,500 के आसपास यूनिट्स हैं। They are all in different sectors. They are MSMEs also. There are large scale industries also. Okay. और इसको प्रमोट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने
अभी 2 स्कीम्स लेटेस्ट दिया है। वन इज स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क्स एंड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, तो एक तरह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करने के लिए स्कीम है। दूसरा स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रिटिकल की स्टार्टिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड ड्रग इंटरमीडिएट्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। सो एपीआई रिलेटेड ऑलरेडी एक पॉलिसी एग्जिस्ट करती है इंडिया में, और TFAC ने भी इसी को लेके रिकमेंडेशंस कुछ दी हैं। TFAC खुद में क्या है? सो इट इज टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, क्योंकि आज 21st सेंचुरी के अंदर गवर्नमेंट में ऐसी बॉडीज होना ज़रूरी हैं जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड इनपुट्स देती रहें और हमारे जो इंडस्ट्रियल लैंडस्केप्स हैं या अलग अलग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हैं, इनको कैसे इवॉल्व करना है, दैट शुड बी particularly suggested. Then moving on to the suggestions given by TFAC with respect to API. So the recommendations include, of course, indigenous production of active pharmaceutical ingredients so that we can be relying on ourselves, आत्मनिर्भरता बढ़े हमारी, और to create mega drug manufacturing clusters and developing a technology platform for biocatalysis for cost optimization and investing in the fermentation sector with large capacity creations. Moreover, attention to technologies like hazardous reactions, cryogenic reactions, जो कि क्रायो टेम्परेचर्स पे होती हैं, -120 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन, एंड मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी। इसके जो एड ऑन्स हैं, अगर आपको नहीं याद तो मैंने इसी आर्टिकल में दे रखे हैं, आगे आप पढ़ पाएंगे। देन फोकस ऑन एंटीवायरल ड्रग्स विच रिक्वायर न्यूक्लिक एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स। इंडिया में ना कोई भी न्यूक्लिक एसिड बिल्डिंग ब्लॉक की प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ATCG आप पढ़ते थे, सो दैट इज एडेनाइन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन। तो इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स की प्रोडक्शन इंडिया में कहीं पे भी नहीं होती, और आमतौर पे हमने ये प्रोडक्शन सारी बंद कर दी APIs की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या कह लीजिए बहुत कम करते हैं हम इंडिया में, क्योंकि चीप ऑल्टरनेटिव हमारे पास चाइना से अवेलेबल था विद रिस्पेक्ट टू अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स या जितने भी केमिकल सेगमेंट्स हैं, ठीक है। तो ज़रूरत है कि एकेडेमिया और इंडस्ट्रिया कोलैबोरेशन हो ताकि टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए और उसको एक प्रैक्टिकल मोड दिया जा सके। सो इश्यूज इसके साथ एसोसिएटेड अभी क्या है? सो देयर इज लो प्रॉफिट मार्जिन एंड नॉन ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्री प्रेजेंटली इन दीज पर्टिकुलर सेगमेंट्स जिनको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज API एंड न्यूक्लिक एसिड्स एंड अदर बायोकैटलिस्ट, ठीक। तो दूसरा इसमें इश्यू है इम्पोर्ट डिपेंडेंस। तो चाइना की भी सस्ते में ये सब बना के दे देता है, 68% हमारी उसके ऊपर इम्पोर्ट डिपेंडेंस है। तो इसी को लेके इसीलिए सजेशंस भी TFAC की है कि यू हैव टू क्रिएट a self-reliant आत्मनिर्भरता in pharmaceutical sector by reducing your import dependence। इंडिया में कैपेबिलिटी है, बस हमें उसको ये देखना है कि हम उसको कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, प्रॉफिटेबल कैसे बना सकते हैं, और ओवरऑल वैल्यू एडिशन में ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। क्योंकि आज की डेट में हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सफिशिएंटली मैच्योर हो चुकी है टू बी एबल टू डिलीवर इट्स प्रोडक्ट्स इन दी वर्ल्ड मार्केट, और उसकी एक रिकग्निशन भी है, स्पेशली इन केस ऑफ जेनरिक ड्रग्स। इंडिया में भी उसकी कंजम्पशन के लिए अब एक रिकग्निशन बनते जा रहा है। तो इस प्लेटफॉर्म को अगर हमें आगे लेके जाना है तो हमें जो इसके कोर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो APIs हैं, वो खुद डेवलप करने पड़ेंगे, तभी जाके हम इसमें एक एक्चुअल ग्रोथ मोमेंटम बना पाएंगे और उसको सस्टेन भी कर पाएंगे, ठीक। सो दीज वर द आर्टिकल न्यूज विच वर to be given up from this particular article। बाकी की डायमेंशंस इसमें ऐड ऑन होती रहेंगी, तो अपने पास उस तरह से आपने रखना है। नेक्स्ट जो न्यूज़ आइटम हमने कवर करनी है, दैट इज फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। सो विद रिस्पेक्ट टू USA विच इज द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया फॉर द सेकंड कंसेक्टिव ईयर। सो इसको लेके प्रीलिम्स रिलेटेड कुछ बेसिक सा डेटा होता है जो आपको कवर करना है। एसेंशली फॉरेन ट्रेड को लेके 3-4 एस्पेक्ट्स हैं। फॉरेन ट्रेड जब भी देखना हो, उसको स्टडी करना हो, तो 3 एस्पेक्ट्स आते हैं। उसकी वॉल्यूम का मतलब कितना हुआ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, है ना। देन डायरेक्शन, तो डायरेक्शन का मतलब किसके साथ ज़्यादा हमारा ट्रेड हो रहा है। एंड थर्ड इज दी कॉम्पोजिशन, कि कौन सी चीज़ें हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और कौन सी चीज़ें ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो ये 3 डायमेंशंस के ऊपर हमारा बेस्ड फॉरेन ट्रेड हमें पढ़ना होता है। तो यहाँ पे फॉरेन ट्रेड में इसकी प्लेसमेंट इसी वजह से कहाँ जाएगी, डायरेक्शन, ठीक। सो इसका अब थोड़ा सा एक 7D मॉडल देखते हैं और फिर इस न्यूज़ आइटम पे वापस आते हैं कि इसने क्या क्या उसमें कंट्रीब्यूट किया। सो गेटिंग यू रेडी फॉर दिस पर्टिकुलर करंट अफेयर,
let's go over to the 7 dimensions of foreign trade, and then we will go into the particular dimensions that are focused and given within the news item. So as far as foreign trade is concerned, what part is simple import export, जिसको हमने जैसे बात की कि डायरेक्शन, देन ट्रेंड एंड कॉम्पोजिशन के हिसाब से हमने देखना है, वॉल्यूम और कॉम्पोजिशन के हिसाब से देखना है, ठीक। देन नेक्स्ट कब से शुरू हो रहा है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही हमें पता है कि मेसोपोटामियन के साथ हमारा ट्रेड चल रहा था, तो दैट इज ऑलरेडी देयर। देन डायरेक्शन इज द वेयर पार्ट, कि कहाँ से किसके साथ हमारा ट्रेड हो रहा है, कौन सी कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारी अब अलाइनमेंट बेटर होती जा रही है। वाई वी शुड गो फॉर फॉरेन ट्रेड, बिकॉज वी नीड फॉरेन एक्सचेंज फॉर आवर ओन इम्पोर्ट्स, सो देयरफॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों म्यूचुअली चलते रहने चाहिए। द हाउ पार्ट इज द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, सो बेसिकली प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, इकोनॉमिक यूनियंस हैं, कस्टम यूनियंस हैं, अलग अलग स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हम पढ़ते हैं, तो उसी के अंदर फॉरेन ट्रेड की भी एक हाउ पार्ट एसोसिएटेड है कि किस तरह से आप ट्रेड करेंगे, गुड्स, सर्विसेज, लेबर, कैपिटल, हाउ दे कैन मूव फ्रॉम वन बॉर्डर टू द अनदर, सो दिस ऑल इज एसोसिएटेड पार्ट विद फॉरेन ट्रेड। As far as the issues is concerned, so the issue is equity and mutual benefit. So ये ट्रेड में हमारा एक गोल रहता है, ठीक। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ये हमारा गोल बड़े क्लियर तौर पे है। सजेशंस के लेवल पे देखा जाए तो आज का जो फॉरेन ट्रेड सिनेरियो इमर्ज कर रहा है वर्ल्ड लेवल के अंदर, तो उसमें मल्टीलैटरल और प्लूरीलैटरल दो तरह के फोकस निकल के आते हैं। सो मल्टीलैटरल फोकस में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एक फ्रंट एंड पे रहता है। प्लूरीलैटरल पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इनको लेके इश्यूज चलते रहते हैं और सजेशंस आती रहती हैं। ये जो पर्टिकुलर न्यूज आइटम हमें अब इनपुट दे रहा है, तो दैट इज अ वेरी फैक्चुअल काइंड ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ इंडिया एंड यूएस ट्रेड रिलेशनशिप्स एंड हाउ वी कैन प्रोग्रेस ऑन द सेम, कैसे उनकी अभी प्रेजेंट स्थिति जो है वो इवॉल्व कर रही है। सो मूविंग ऑन टू द इनपुट्स, सो इन एज फार एज द व्हाट इज कंसर्न, पहले तो यही देखो कि कौन इस पर्टिकुलर डेटा को रिलीज करता है कि हमारा ट्रेडिंग पार्टनर ये सबसे बड़ा है या हमारे ट्रेड रिलेटेड डेटा। सो दैट इज कमिंग फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो दैट हैज स्टेटेड दैट यूएसए रिमेन्स द largest trading partner for India. Now, as far as USA-India trade is concerned, India has a trade surplus. So this trade surplus is something of the order $17.5 billion. Okay, and in 2018-19, US-India trade surpassed the US-China trade, and this is a good sign as far as the relationships between India and USA are concerned. Now, as far as the issues are there, so USA के साथ जब भी ट्रेड नेगोशिएशंस होती हैं तो कुछ वॉच एस्पेक्ट्स हैं जिन पे हमें ध्यान देना पड़ता है, जहाँ पे US बिकॉज ऑफ इट्स प्राइवेट एंटरप्राइजेस बहुत अग्रेसिव रहता है। वो कौन से हैं? एग्रीकल्चर, डेयरी, इश्यूज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो यहाँ पे हमेशा वो अग्रेसिव रहता है और ये अग्रेसिवनेस की वजह से हमें WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में भी कई बार उसके साथ आमना सामना करना पड़ जाता है। तो इस वजह से वी हैव टू बी considering certain issues with respect to this India-US trade. Then, second issue is the Trump administration right now and the way it moves. So, there is a ban on immigration and non-immigrant visas till the end of 2020. COVID-19 situation, and also there are from time to time H-1B visa restrictions which are placed by USA. So it kind of creates an uncertainty between the relationship, especially with respect to trade and services in these visa formats. Then certain suggestions are there in terms of this article itself. तो आर्टिकल ये सजेस्ट करता है कि इंडिया चाइना के अब रिलेशनशिप थोड़े से कंस्ट्रेंड हैं, यूएस चाइना के भी रिलेशनशिप आपस में कंस्ट्रेंड हैं। तो अगर दुश्मन कॉमन हो तो एटलीस्ट दोस्त जो हैं वो आपस में और बढ़िया दोस्ती बना सकते हैं, है ना। सो दिस कैन बी यूटिलाइजेबल पॉइंट फॉर बेटरमेंट ऑफ इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस एज वेल। एंड सेकेंडली, द प्रेजेंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा, which is the main reason for increasing in bilateral trade between India and USA, should be utilized in this coming times. Then, right now we are also negotiating a trade agreement with USA, so this should help in prosper of this particular trade exchange between the two countries, and essentially from India's perspective help us earn more of US dollars. Then, now as far as the next news item is concerned, it does not require much of the 7D inputs.
बड़ा सिंपल सा ये न्यूज़ आइटम हमारे पास है, इट इज़ रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन जो है, अब पहली बार जो रेंज उर्जित पटेल कमेटी ने सजेस्ट किया था कि 4% ±2% के आसपास रहनी चाहिए, उस रेंज को ब्रीच हुआ है इन दी टाइम आफ्टर द क्रिएशन ऑफ योर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। सो इट इज़ नाउ 6.09। और उसका मेन कारण क्या है, आपको प्रीलिम्स में बस इतना सा पूछ सकते हैं। सो दैट इज मेनली ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ पल्सेस एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। दूसरा जो है दैट इज अगेन इन मीट एंड ऑयल एंड फैट्स एंड स्पाइसेस। सो एसेंशली द फूड सेगमेंट इन्फ्लेशन इज हायर। सो बिकॉज ऑफ हायर फूड इन्फ्लेशन, जिसकी आपको याद होगा कि जो कॉम्पोजिशन है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, उसमें फूड कंपोनेंट की कॉम्पोजिशन 45% के आसपास आती है। तो इस वजह से उससे जो ओवरऑल सीपीआई की मूवमेंट है वो भी बढ़ेगी। ठीक, नेक्स्ट जो न्यूज आइटम है जिसको हमने 7D एनालिसिस में लेके जाना है, दैट इज रिलेटेड टू NPAs in India. So just getting you ready for this particular news inputs, let's go over to the 7D map for this NPA. इसके साथ एसोसिएटेड चीज़ें एक बार बेसिक लेवल पे देख लेते हैं, फिर इस न्यूज़ आइटम के अंदर भी जो जो एस्पेक्ट्स हैं वो हम साथ ही पढ़ लेंगे। सो एज फार एज NPAs आर कंसर्न, बेसिक्स देख लेते हैं। व्हाट एस्पेक्ट में अगर देखें तो जब भी कभी EMI आपकी 90 दिन से ज़्यादा डिले हो जाएगी तो दैट्स व्हेन वी स्टार्ट कॉलिंग इट NPA और नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर उससे पहले टाइमली EMI आ रही है तो इट इज़ अ परफॉर्मिंग एसेट। कहने का मतलब वो बैंक के लिए एक इंटरेस्ट रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। ठीक, इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो बेसल अकाउंटिंग नॉर्म्स के हिसाब से है, तो हम इनको एज इट इज सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस्ट, ये इसकी आगे 3 कैटेगरीज बन जाती हैं। यू मस्ट बी नोइंग इट। ओके, व्हेन एंड वेयर की इसमें कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन व्हाई, ये एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट इकोनॉमिक ऑफेंसेस एक्ट या फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट की वजह से आया, जिसमें बोनाफाइड और मैलाफाइड 2 तरह के हमारे NPA क्रिएशन के रीजंस माने जाते हैं। बोनाफाइड मतलब वाकई में अब बंदे ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, उसकी इंटेंशन नहीं थी, बट NPA क्रिएट हो गया, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर एक रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। लेकिन मैलाफाइड इंटेंशन से NPA क्रिएट किया गया और लेके पैसे भाग गए, तो जैसे कि #विजय माल्या, सो इस तरह का कोई सिचुएशन आता है तो उसको फिर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के अंदर आप डील भी कर सकते हो। तो दैट इज द सिचुएशन हियर इन मैलाफाइड। नाउ एज फार एज द हाउ पार्ट इज कंसर्न्ड, कैसे ये सारे NPAs कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, तो इसको लेके लेजिस्लेटिव एज वेल एज रेगुलेटरी एस्पेक्ट पे गवर्नमेंट के कुछ ना कुछ एस्पेक्ट चलते रहते हैं। जैसे लेजिस्लेटिव में आपने अभी रिसेंटली देखा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 में आया, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी टाइम टू टाइम होती रहती हैं। इनफैक्ट 2020 में भी अमेंडमेंट्स हुई। और जो रेगुलेटरी एस्पेक्ट है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो RBI अलग अलग मेजर्स के थ्रू NPAs जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इश्यूज एंड एनालिसिस में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को NPAs हर्ट करते हैं, और बेसल 3 नॉर्म्स जो हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं ये भी अपने आप में एक ट्रबल मेकिंग फैक्टर है। और FSLRC, if you would recall, Financial Sector Legislative Reform Committee and various other committees like Narasimha, PJ Nayak, etc. have been continuously giving recommendations on how to manage the financial system in a better way so that the borrowing and lending can aspire confidence in the economic growth models and not the other way around. Now, moving on to this particular news item, it is focused only on some parts where RBI is providing suggestion in terms of COVID-19 that it is going to have a bad impact on the capital base of the banks and how the banks can basically deal with it. So, with respect to this, it has tried to provide certain suggestions and measures to the banking systems. So it has said that just in a span of a decade, the Indian economy has been, or the Indian financial system has been dealing with the 2007-8 global financial crisis. And in 2008-9, this financial crisis kind of seeped into India's financial system as well. दूसरा, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से भी अब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो स्ट्रेस में है। इसीलिए इनको अपनी जो एसेट क्वालिटी, लैक ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, लॉस ऑफ कैपिटल और एक्सेसिव रिस्क एक्सपोजर, पुअर कंडक्ट एंड लिक्विडिटी कंसर्न्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे वो बढ़ने के चांस हैं, तो उनका और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, और सिर्फ बैंक्स ही नहीं, NBFC और म्यूचुअल फंड्स भी अब कंस्ट्रेंट्स में हैं, जो हम पिछले साल से देखते चले आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू IL&FS क्राइसिस। तो इन सब के लिए एडवाइजरीज RBI ने अब इशू की है दैट दे शुड नाउ क्रिएट
their reserves and their shock absorbers in such a manner, क्योंकि आमतौर पे जब कोई भी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स या मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स दी जाती हैं तो वो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स के हिसाब से दी जाती हैं कि इससे पहले क्या रिस्क मार्केट में ऑलरेडी हो चुके हैं, बट अभी अनप्रेसिडेंटेड रिस्क कोविड-19 के चलते दिख रहे हैं। सो इसलिए पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दोनों को ही अपनी एडजस्टमेंट्स जो हैं कैपिटल बेसिस की वो इस तरह से करनी पड़ेंगी कि वो ये पूरे का पूरा स्ट्रेस जो है झेल जाए। सो दिस इज इट फॉर दिस वीक्स इकोनॉमी करंट अफेयर्स। आई होप दिस विल एड अ वैल्यू टू योर प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन थ्रू आउट यूपीएससी एंड विल हेल्प यू अपडेट योर नोट्स एज वेल। इसको आपने किस तरह से कंडीशन करना है, ये सारी चीज़ें आपके साथ गिवन है। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको इसको रिलेटेड चाहिए तो आप जो नंबर है हमारा CBL का, चेतन भारत लर्निंग का, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं या ईमेल के थ्रू मेरे साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग और एनरिच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज़ मी अभिषेक शर्मा साइनिंग ऑफ।